मैं अपने दोस्तों के साथ था and we'd gone to RG's, this night club. और वहाँ पर there was this man with red hair, curly hair. He came और इसने बोला कि are you a model? And I said no. तो he said would you like to model? You should. तो I said नहीं यार ऐसा कोई idea नहीं है about modeling and all of that. और उन्होंने अपना नंबर दिया and that person was Rohit Bal. जी हाँ. Oh my God. Wow. Oh my God. Oh my God, that's superb. This is the man, Mr. Rohit Bal, जो Wow, thank you. How are you? This show would not have been complete without this man. So thanks, Goods, for coming here. Thank you. My pleasure. तो रोहित ये पूछना चाहेंगे कि ये कहानी जो अभी अर्जुन हमें बता रहे थे कि आपने इनको नाइट क्लब्स में देखा और आपने कहा हाँ ये लड़के में वो टैलेंट एक फायर नज़र आ रहा है, तो क्या ये सच है? Absolutely. But मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक अर्जुन अपनी किस्मत खुद लेके आए थे और उस किस्मत में मुझे जोड़ के लाए थे. आई थिंक एक छोटी सी मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो कि इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. That I had taken his name, and at that time there were no mobiles or anything, so we had diaries with numbers, and so I'd written his name down, Arjun Rampal. One day at home, my bhabhi was looking through my diary, finding some number, and she read the name Arjun Rampal. So she asked me, who is this Arjun Rampal? I said, this is the boy that I met. She said, if you meet him next time, उनसे पूछिए अगर वो किसी Gwen Rampal को जानते हैं. हाँ. तो I said, okay, मैं पूछ लूँगा. And I think he called me on Christmas to wish me. I asked him, I said, do you know anyone called Gwen Rampal? Yeah. He said, yeah, I do. Yeah, she's my mom, dude. So I mean, and it turned out that my bhabhi was actually very close friends with his mother. And They were in school together. They were in school together. Wow. Many years ago. So it was, I think, one of those things, one of those karmic connections that we सही had. में जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि किस्मत कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी और जो होना था वो तो होके रह गया. अब चलते हैं ज़रा एक और हमारी मेहमान है जो यहाँ हैं और जिन्होंने शायद आपको बहुत नचाया है, तो किस तरीके से नचाया है वो देखते हैं, उनकी ही बोली सुन लेते हैं. प्लीज़ आ जाइए. आप वो थी सुना जिन्होंने बहुत नचाया इनको, और वो किस तरह नचाया प्लीज आप ऑडियंस को बता दीजिए. Okay, firstly though, nobody nachowed him, he nachowed everybody in अच्छा our इन्होंने सबको business. नचाया है. चलिए. So of course when he started, he was the best at the time, and he's still, we're still trying to find somebody to match that. But it's fabulous. But more sweet than that is the beginning of their romance, so to speak. There was Meher trying to fix him up with every pretty girl, she liked him very much. आप बल्कि आप लोग दोनों पहले दोस्त थे और आप इनके लिए लड़कियां ढूंढ रही थी. बाप रे, ये कैसे हो गया था? No, आज she has found तो फिर him ये two little रोमांस girls. कैसे हो गया कि सडन रियलाइजेशन कहाँ से आ गया कि So we were in Delhi, हाँ जी. and वहाँ डेंगू चल रहा था, and everybody was like falling ill and everything. And Meher comes to the room and she goes, Sangu, he's being really nice. I don't know, something is happening. I'm fine. So we were like, butterflies are coming, exactly. So we were like, Meher, you're denged, okay? 3 months later, Arjun comes and says, Sangu, I'm asking her to marry me. I was like, oh my God. So it just, so one of the sweetest things. And, that's great. They've been together and lovely marriage. touch wood. चलिए, जब इतना प्यार है ही हम सब के बीच में, तो थोड़ा और प्यार आ रहा है आपके लिए उस एवी के जरिए. So देखिए. Arjun of the Wicked Laugh fame. Well, we all remember Arjun from his laugh, but I remember him from his first show when Rohit Bal actually introduced me to him and said, here's this fantastic new model, but he doesn't know what to do. So just teach him whatever you can. So there I was kind of teaching Arjun, and we really bonded. And we also realized that we were always into pranks. And that particular show, we actually pulled down the flag of the hotel and stole Rohit Bal's underwear, Calvin Klein, which wasn't available in India those days, and actually hoisted his underwear onto the flagpost of the hotel and got thrown out also, almost. Well, that's how Arjun and me bonded and got along since then. Oh, no, no.
आपका सफर रहा ये मॉडलिंग से उठ के फिर बॉलीवुड पहुंचे आप। तो हम पहले बॉलीवुड के बारे में बात करने से पहले हम आपके एक ऐसे मित्र को बुलाते हैं जो आपके साथ रहे, उन्होंने फिल्में की हैं और आपके पर्सनल फ्रेंड भी हैं, तो प्लीज चले आइए। आपने भी काफी साथ निभाया है इनका उन दिनों में। वेल अर्जुन को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मेहर को तो सबसे पहले जानता हूँ मैं। इनफैक्ट जब मेहर मिस इंडिया बनी थी तब मैं गया था उस शो में, एंड शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज एवर। आई लव यू। थैंक यू। ओके, अर्जुन को मैं थोड़े बाद में मिला, बट ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, यारों का यार, दोस्तों का दोस्त। बट ही इज़ जस्ट ग्रोन फ्रॉम डे टू डे एज एन एक्टर स्पेशली। और इसने मेरे साथ एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस भी की थी एक बार। हाँ जी। इसके गाड़ी में एक फ़ोन लगी थी, नया फ़ोन था, याद है? मुझे फ़ोन किया था एज अ CBI ऑफिसर। मैं इतना डर गया आधे घंटे के लिए। ही इज सो टैलेंटेड, आई विश ही कैन डू दिस ऑन द शो व्हेन ही इमिटेट्स वॉइसेस। आई एम श्योर मैं इवन यू कांट रिकॉग्नाइज। वो प्लीज एक बार दिखा दीजिए, हमारी ऑडियंस देखना चाहती है कि नहीं? He's damn good यार। एक बार यार मैं ऐसे नहीं कर एक सकता कोई हूँ, फोन दे दीजिए, गिव मी योर फोन। किसी के पास है लाइए, आप प्रिटेंड कीजिए कि फोन है आपके पास और आप चंकी पांडे जी को फोन कर रहे हैं। हाँ, that सबसे पहले आप अर्जुन रामपाल के हाथ में किसी को फोन नहीं दे सकते। अच्छा, एक बार याद है जब भावना का फोन घूम गया था और actually you had hidden the mobile and I was calling up In Dubai. दुबई में। हाँ, तो just remove that voice ना। अरे यार I can't do it like अच्छा, that like only. ट्रिंग ट्रिंग वो ट्रिंग आ जाती है वो कभी-कभी। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके कर लीजिए, हम लोग कोई नहीं देखेंगे। हेलो, ये भावना का फोन है? Hello. Who is she? हेलो Who is she? हेलो, फोन वापस कर दो, आपने चोरी किया। इधर कोई भावना नहीं। हेलो, Sorry. Hello sir. No भावना in this line. I'm sorry. चलिए, मुझे तो इन दोनों पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को अर्जुन पर कितना भरोसा है ये जानेंगे हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राइट? Thank you for whatever I am today is because of you. Thank you. वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टेफी एडवांस। और आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन रामपाल से। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अर्जुन। मैं बहुत परेशान हूँ इससे। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बोलिए अर्जुन के बारे में। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। पहले तो मैं अकेला स्टार था मेरे गली में, सोलो हीरो था। फिर और लोग बोलते थे, अच्छा आप कहाँ रहते हो? ओ, मैं चंकी पांडे के गली में रहता हूँ। फिर अर्जुन रामपाल मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी बन गया। आजकल मुझे बोलना पड़ता है कि मैं अर्जुन रामपाल के बिल्डिंग के बगल में रहता हूँ। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में ये बात हुई थी कि फ्रॉम अ मॉडल टू अ सुपरस्टार एंड देन एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर। तो जब आप यूरोप से वापस आए, आपने बहुत बड़े बड़े एड्स किए वहाँ पे, ह्यूगो बॉस, डोना कैरन, और जब आप वापस आए तो आपने क्या सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं मॉडलिंग की दुनिया में अचीव कर चुका हूँ, अब इट्स टाइम टू मेक द शिफ्ट कि अब मैं एक्टर बनूँ? जाने से पहले मैं एक ऐड कर रहा था शेखर कपूर के साथ। जी हाँ। उस ऐड फिल्म के शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी अशोक मेहता जी के साथ। हाँ जी। जो एक फिल्म बना रहे थे मोक्ष। जी हाँ। और वो चाहते थे कि मैं उस फिल्म में काम करूं, बट आई वाज नॉट श्योर यू नो कि मैं ये फिल्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एंड आई स्टिल वांटेड टू गो अब्रॉड to see if I can model there, what all I can do there. Right. जैसे मैं मुंबई आया, सबसे पहला फ़ोन कॉल अशोक जी का था। इसे बच्चे तो अभी रेडी हो जा, ओके, तेरी ट्रेनिंग वेनिंग करवानी है, तुझे एक्टर बनना। तो एक सेकंड, यही एक ब्रेक ले लेते हैं और यही फ़ोन कॉल पे हम ज़रा चलते हैं। बच्चे जी, आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अशोक जी। जी हाँ। अशोक जी। I am good. How are you? Wonderful. अशोक जी, यहाँ पे अर्जुन आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा उनको स्टेडी होने में। आप क्यों नहीं बताते क्या हुआ था उस फोन कॉल के दौरान?
just want to say I love you and that thank you for whatever I am today is because of you. Thank you. अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे शो इसी का नाम जिंदगी में आपने अर्जुन से बात की और हम बात कर रहे थे उस दौरान जब आपने अर्जुन को उनका एक सबसे बड़ा ब्रेक दिया मोक्ष के साथ। तो आपको धन्यवाद करना चाहते हैं और अर्जुन की ही बोली से सुनेंगे आपके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच अशोक जी फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस टुडे। Yeah, okay. And I love you too. Okay, thanks. आप लोगों ने मुझे बुला भी दिया शो पे। नो एक्चुअली इट्स वेरी सैड क्योंकि अशोक जी इज़ रियली नॉट वेल। वो हॉस्पिटल में है इस वक्त एंड सुबह ही मेरी बात हुई थी उनसे। जी हाँ। सो या इट्स हॉरिबल टू सी a man with so much energy just in this situation. Well, this is life and कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे छू जाते हैं but they remain with us forever and we wish him a speedy recovery and I'm definite, I know Ashok ji as well, that he's going to be bouncing back harder in our lives than you ever know. So hats off to him. उस दौरान मैं समझती हूँ अर्जुन आपका एक्चुअल स्ट्रगल पीरियड था क्योंकि इवन दो एक अच्छा ब्रेक मिला आपको मोक्ष के साथ, मोक्ष को थोड़ा समय लग गया बनते हुए और समय नहीं, आई मीन 6 साल लग गए फिल्म को क्योंकि अशोक जी चाहते थे कि वो अपने अंदाजे से फिल्म बनाए। जो कुछ भी मैंने सीखा है आज यू नो जो पेशेंस, जो डिटर्मिनेशन, जो जिस तरीके से हाउ टू लव योर वर्क, आई थिंक दैट मैन अशोक मेहता हैज टॉट मी। मैं आपको थोड़ा इस समय बुलाऊंगी, यहाँ आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपसे पूछना चाहूँगी कि इन दौरान जब ये एक्चुअल वेटिंग पीरियड था, जब आप लोग इंतज़ार कर रहे थे मोक्ष टू हिट द बिग स्क्रीन, उस समय आप लोग की बहुत तकलीफ़ें आप लोग को झेलनी पड़ी। It wasn't difficult or anything. It was just a part of us growing up I together. think difficult इसलिए नहीं था क्योंकि आप लोग दोनों साथ थे उस समय। You know, I think the nicest part of all these moments are कि first, I think while growing up, my mom never ever made us feel short of anything. I think when you go around India, you see such disparity. And so you see all those things and you always say, मैं ठीक हूँ यार, you know, and you just try to go out there and try to give back and hope that you can, you know, achieve and not disappoint yourself. चलिए तो उस इंसान को बुलाते हैं जिन्होंने आपको ये अपब्रिंगिंग दी है, ये वैल्यूज़, ये मॉरल्स दिए हैं और जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने ये आपको सिखाया इस पथ पर चलना, तो उसी इंसान को बुलाते हैं क्योंकि जानना चाहेंगे कि वो कौन है जिन्होंने आप में ये इतनी अच्छाई डाली है। तो एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम मिसेस ग्वेन रामपाल, अर्जुन's मदर। She must be more nervous than anybody. Arjun has always been a very warm, vibrant, and I'm so sorry, but my voice is trembling. It's okay. Think of your elocution, how you used to teach me. Take आप your एक deep टीचर रह breaths. चुकी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। My mom is very nervous. I get my nervous energy from her. All of it. But he's a fantastic son. I mean, I always am. No, my mom is the most fantastic mother. I'm always in an attitude of gratitude to God for giving me a son like Arjun. He's really very, very nice. And my daughter told me, don't you dare behave like this. But Arjun is also very, very naughty, very mischievous, and always up to pranks. Right That also from I when learned he from was, you only. Right from when he was a little kid.
He's always been up to pranks. He's got a lot of energy. He used to always be out playing, having a good time. He's never let anything negative in his life affect him. He's always used that as a stepping stone.